اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، مجھے ایک کلپ ملا، زرق نقوی نامی شیعہ ہے ایک، اس نے اہل سنت و جماعت کی کچھ کتابیں پیش کی ہیں اور کچھ سچ میں اہل سنت کی ہیں اور کچھ ان میں منسوب بھی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی آگے ذکر کریں گے۔ تو یہ ان عبارتوں سے لے کر یہ کافی ساری بکواسات کر رہا ہے، اور مسئلہ یہ بنا تھا کہ ایک دفعہ رافضی ملا حسن اللہ یاری اس ملعون کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا کسی کا، تو اس سے پوچھا گیا جب یہ بات چلی کہ تم کہتے ہو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دروازہ گرایا، ان کو شہید کیا معاذ اللہ، اس طرح کی بکواسات کر رہے ہو، اس کا حوالہ دو، اور اس سے اس کا حوالہ نہیں بن پایا۔ پھر کہا کہ جب بات چلی کہ مولا علی گھر پر تھے تو جو سامنے مناظر تھے وہ غصے میں آ گئے، یعنی جذبات کی حالت میں ان سے سبقت لسانی ہو گئی، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بے ادبی کر بیٹھے، اور اس پر انہوں نے رجوع بھی کیا اور توبہ بھی کی، اور کہا کہ یہ ایک کیفیت کی حالت میں تھے، وہ بہت زیادہ غصے میں تھے کہ ان سے یہ بات ہو گئی۔ تو اس بات کو لے کر یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ انہوں نے بات کی تھی کہ جناب اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تھے، انہوں نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ کیوں نہ لیا؟ تو اس پر وہ حوالہ پیش کرتا ہے، ازالۃ الخفا کی ایک عبارت اس نے پیش کی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ہی منع کیا تھا۔ یہ اس کی عبارت کا شیعہ کے خلاف لکھی کتاب، اس سے بڑی کتاب ہم کون سی پیش کریں؟ صفحہ نمبر 504 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری وصیت موجودہ مولا علی کے نام میں، مشہور زمانہ کے جو رسول اللہ نے کہا تھا علی تلوار نہیں نکالنی۔ وہ لکھتے ہیں علی سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا کہ آئندہ عمارت کے امیدواروں میں اختلاف ہوگا، اگر تم سے ہو سکے تو بچے رہو تو ایسا کر لینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں جو متواترہ ہے، متعدد اسناد سے روایت کی گئی ہیں، بیان فرما دیا کہ امت حضرت مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ پر جمع نہ ہوگی۔ یہ امت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ پہ جمع نہیں ہوگی۔ متواتر روایت ہیں، متواترہ، شاہ ولی اللہ نے نہ صرف نقل کیا پھر اس نے پوری عبارت پیش کر کے آگے جو نتیجہ لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسے ذکر نہیں کیا۔ حوالہ اس نے ازالۃ الخفا کا دیا تھا کہ ازالۃ الخفا کے اندر یہ بات موجود ہے، تو ازالۃ الخفا کی یہ عبارت لکھ کر شیخ ولی اللہ محدث دہلوی نے آگے جو بات کی تھی وہ بات اس بندے نے ذکر نہیں کی۔ تو میرے پاس بھی وہ کتاب موجود ہے، اس کے حاشیہ کے اندر، اس کے وضاحت کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لوگوں کے دل میں کینہ تھا، کہ اس لیے نہیں منع کیا کہ آپ خلافت کے چکروں میں نہ پڑنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تھا لوگوں کے سینوں میں، بلکہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے خوف تھا کہ کینہ، اور نہ ہی یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بغض جو تھا وہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے اشکار نہیں کیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس جھگڑوں سے نبی علیہ السلام بچنا چاہتے تھے اس لیے منع کر دیا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ عہد نبوی میں اگر کسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملال پیدا ہوتا تو وہ آپ کے ارشاد سے ہی دفع ہو جاتا، کہ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی اس کو بات ملتی ہے، اس کا دل میں کوئی شک آتا ہے، اس شک کو دور ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کیونکہ آپ کا اس پر حق نہیں تھا۔ یہ وضاحت شیخ صاحب نے آگے کی ہے جو کہ اس نے ذکر نہیں کی۔ پھر اس نے حوالہ پیش کیا تاریخ ابن اسیر جزری کا، اسی عبارت کو لے کر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
बकवास कर रहा है। कर रहा हूँ इसको नानी याद करवाने के लिए। सफ़ा नंबर 456 में हज़रत उस्मान के कत्ल का दौरानिया, उनके कत्ल का दौरानिया है, कत्ल के दौरान ये वाक़या पेश आया। क्या जी? अल्लाहु अकबर। आपने पीठ फेरी तो उनके कूल्हों की तरफ इशारा करके हज़रत उस्मान की बीवी की ये बड़े कूल्हों वाली को, हज़रत उस्मान को तलवार मारकर शहीद कर दिया। सुभान अल्लाह। ये हज़रत उस्मान की ज़िंदगी में उनके सामने जब उन्हें कत्ल करने के लिए उनके घर में लोग जमा हैं तो वो कह रहे हैं इसकी बीवी के कूल्हे कितने पड़े हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ये चेक करें जी, सुभान अल्लाह। उनको भौंक रहा है ये कुत्ता। क्या कहता है कि वो इबारत कुछ इस तरह है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब शहीद किया गया तो एक शख्स ने आपकी ज़ौजा के बारे में नज़ेबा कलिमात कहे। जो उसने कहे वो तो मैं नहीं कह सकता, जो लिखे हुए हैं, नज़ेबा कलिमात कहे। तो कहते हैं कि जनाब देखें, अगर बदला ना लेना, ये तुम इसको ये बात कह रहे हैं कि बदला ना लेने वाला बेगैरत है, इस तरह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हज़रत उस्मान ने भी तो बदला नहीं लिया, तो क्या अब उनके बारे में भी ये बकवास करोगे? तो देखें, आपके सामने इबारत शो हो रही है इस वक्त, उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात की गई आपकी ज़ौजा को, तो उस वक्त हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया था। जैसे ही उनको बकवास की, उन्होंने हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया। और हमारा जो सवाल है वो हयात अली का ही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त हयात थे, हमारी बात है उधर की उधर ही मौजूद है। फिर इसने मुस्तदरिक अल सहीहैन उसकी एक हदीस पाक पेश की, आधी पढ़ी, आधी के 2-3 अल्फाज पढ़े, और उसमें हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माज़अल्लाह ज़ानी कह रहे। आए हदीस की किताबों की तरफ चलते हैं जी। इसी मसले में सफ़ा नंबर 136 पे यहाँ पे इला बाब उम्मे जमील इमरात मिन कैस, इस हदीस में 5892 नंबर हदीस है, 5892। और सहाबी रसूल वाज़े कहते हैं उन्ज़ुर फनज़र क़ाल मा रअयत क़ाल रअयतु ज़िना। मुगीरा बिन शोबे और उम्मे जमील नामी औरत का आपस में माशाल्लाह जगम जगम पकड़ा गया था वहाँ पे। वाह सुभान अल्लाह। जो बकवास करेगा वो जानी थे, ये उसने मुख्तसर सी पढ़ी। लेकिन इसी हदीस के आप आखिर में चले जाएं तो यह फैसला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरान से हो चुका था कि ये बेगुनाह है, और पूरी हदीस पढ़े तो उसमें यह बात लिखी हुई है कि सहाबा को, वो जो लोग थे जिन्होंने ये बात की थी, उनको गलत फहमी हुई थी, उनको गलत फहमी उनको हो गई थी कि ऐसा चल नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा कह दिया तो उनको इससे बरात मिल गई। फिर आखिरी हवाला जो इसने पेश किया तारीख़ याकूबी का, और साथ में ये बकवास की कि तारीख़ याकूबी सुन्नियों की किताब है। बकवास करके हज़रत अबू सुफियान के बारे में तो ये कहते हैं सुन्नियों की किताब में लिखा हुआ है। मेरे पास मौजूद है जी इब्ने वाज़े याकूबी की तारीख़ याकूबी जिल्द नंबर 2, और इसकी तौसीक भी पेश करेंगे, कल को ये ना कहेंगे ये तो शीयों की किताब है। जिल्द 2 सफ़ा नंबर 361 पे लिखते हैं अबू सुफियान ने अपने सफ़र से वापसी पर मेरे पास से गुजरा और उसने खाया पिया, फिर कहने लगा कि ए अबू मरियम सफ़र लंबा हो गया क्योंकि फाहशा औरत है। मैंने कहा मैं तेरे लिए सिर्फ बनी अजलान की लौंडी को पाता हूँ। उसने कहा कि उसके लंबे पिस्तानों अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूब और उसकी मैल की जमा होने की जगह से बदबूदार होने के बावजूद मैं मेरे पास लाओ, लानत है। मैं उसे उसके पास लाया तो उसने उससे जमा किया, फिर वो मेरे पास वापस आ गया और मुझे कहने लगा अबू मरियम उसने मेरी पुश्त का पानी अच्छी तरह निकाल लिया। ये दीन है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। फिर उसने जो बकवास की वो आपने समाप्त कर ली है। आगे तो मैं अब पेश करता हूँ हवाला जात के, ये जो तारीख़ याकूबी का मुसन्निफ है ये शिया है, ये शिया है। मैं इसके हवाला पेश करता हूँ। पहला हवाला किताब का नाम है असल व उसूल शिया, असल व उसूल शिया ये किताब का नाम है, और इसका सफ़ा नंबर 61 पर जो शिया मुअर्रिखीन हैं, शिया तारीख़ लिखने वाले हैं, उनका जिक्र चल रहा है, और उनमें इसी मुसन्निफ तारीख़ याकूबी का मुसन्निफ का जिक्र भी मौजूद है और किताब का जिक्र भी मौजूद है कि ये बंदे का नाम है। नाम भी लिखा हुआ है कि अहमद
इसका पूरा नाम इन्होंने अहमद बिन मोहम्मद बिन खालिद अल बरकी, नसर बिन मुजाहिम अल मनकरी, इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन सक़फ़ी, अब्दुल अजीज हलवी इमामी। आगे नाम लिखा है अहमद बिन याकूब, जो तारीख़ यकूबी के नाम से मशहूर है। तो ये तो शिया है, और शिया की बकवास तुम हमारे खाते में डाल रहे हो। इसके अलावा ये इबारत क्या कहते हैं कि शिया ही है, वो तारीख़ यकूबी वाला, तुम्हारी ही किताब लिखी हुई है अयानु शिया, उसकी पहली जिल्द का सफ़ा 154 के ऊपर में ये बात मौजूद है कि ये शिया है। ऊपर टाइटल लगा हुआ है कि ये शिया मौरिखीन कौन है, उनमें यकूबी का भी नाम मौजूद है, जैसा कि तुझे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फिर तूने जो हवाला पेश किया कि ये यकूबी ये सुन्नी है, सुन्नी का तूने हवाला दिया, तो कमीने पूरी इबारत तो पढ़ ले। एक लफ्ज पढ़ के जी तारीख़ कबीर, उसकी किताब को तारीख़ कबीर कह दिया, लिहाजा ये उन्हीं का हुआ। दलाइल दिए जाते हैं ऐसे जैसे मैंने दिए, तेरी किताबों में साबित किया, वाज़े लिखा हुआ है कि ये शिया है, ये शिया है, वाज़े लिखा हुआ है। और तूने जो इबारत पेश की है, मैं वही तेरे ऊपर पेश करके पूरी इबारत पढ़ के तुझे सुनाता हूँ, और तर्जुमा भी तुझे करके बताता हूँ कि बेटा इसका मतलब क्या है, और तू मतलब छुपा रहा है ना। देख वही अहमद बिन अबी यकूब इसहाक बिन जाफर 213 जो तूने जिक्र किया है, इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि जनाब लहू इब्तादा बि सनद समानीन व मियातैन क़ाल इन्न अहमद बिन इसहाक बिन वादे मौला बनी हाशिम तूफ़िया फ़ी सनद अरबईन व समानीन व मियातैन। ये इबारत लिख कर आगे क्या मौजूद है, वलहु तसन्नीफ़ुन कसीरतुन, कि इस बंदे ने काफी सारी किताबें लिखी हैं, यकूबी ने काफी सारी किताबें लिखी है। आगे लिखा हुआ है मिनहा किताबुत तारीख, फिर आगे किताबों का नाम आया है कि इसके तमाम किताबों में एक किताब का नाम तारीख़ कबीर है। उसने जितनी किताबें लिखी हैं उनका नाम बताया गया है कि ये तारीख़ कबीर है, ना कि उसको सुन्नी कहा गया है। तूने हर बात में गेड़ी दी, कुछ बातें तूने आधी पढ़ी, कुछ का तूने मतलब ही गलत निकाला, जो आगे लिखा हुआ वो तूने बयान नहीं किया। तो जरा नकवी बंदे का बच्चा बनना है, जो बात पूरी लिखी हुई है वो बयान कर, जो बात पूरी लिखी हुई है। मैंने तेरे सामने एक हरफ भी गायब नहीं किया, पूरी इबारत तुझे पढ़कर सुनाई है और तेरे सामने तुझे दिखाई भी है। अब अगर तेरे रगों में एक बाप का खून है ना, तो बच्चा इस बाप के जवाब का जरूर दे, बात का जवाब। और तू बकवास करता है सहाबा को, तेरे मुल्ला याहुल फकीह के अंदर तेरे मुल्ले ने ये बात लिखी हुई है कि अगर एक औरत 3 मर्दों से जागा लूसा कर ले, तूने भी जागम ही कहा ना, अगर एक औरत 3 मर्दों से जागा लूसा कर ले और फिर जनाब उससे बच्चा पैदा हो, तो वो बच्चा किसका होगा? तो तेरा अबू जी कहता है उसका जनाब कुरानदाजी कर ले। तो जिस कुत्ते के अब्बे के फैसले हो रहे जनाब कुरानदाजी से, वो लगा हुआ सहाबा के बारे में बकवासात करने। बच्चे तूने बहुत भौंक लिया है, अब इंशाल्लाह तबारक तआला तुझे मैं रगड़ा दूंगा, अच्छे से दूंगा, और तुझे वेलने में बार बार घुमा कर दूंगा। तुझे लग पता जाएगा बच्चे तूने पंगा किससे लिया है। तू सहाबा को भौंकता है ना, अब देख मैं तेरा रगड़ा कैसे निकालता हूँ। और जब मैं टॉपिक छेड़ूंगा ना कि शिया गुस्ताखी अहले बैत है, फिर उसमें जिस इबारत पर तूने बात की है ना कि गुस्ताखी है वो गुस्ताखी, लेकिन वो सबके दिल लिसानी की वजह से जानबूझ करनी हुई, तो उन्होंने उस पर तौबा की। यही इबारतें जो उन पर तू बकवास कर रहा है, यही इबारतें बच्चे मैं तेरी किताबों से निकाल दिखाऊंगा जो तूने बकवासात की हुई है। अभी तक तो तेरे लिए इतना डोज काफी है। इंशाल्लाह तबारक तआला तुझे गाय बगाए मैं फक्की देता रहूंगा। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन।